Good morning, class. Good morning, sir. Okay, so आज का जो टॉपिक है that is impromptu presentation or impromptu speaking. Okay. So first of all हम देख लेते हैं what is impromptu speaking. So impromptu speaking or presentation is a topic on the spot and giving a brief speech on about 5 to 7 minutes on him. Okay, so whenever a person is supposed to give a presentation or a speech for 5 to 7 minutes on a topic and the topic is given to him on the spot, means the topic was not previously decided that which topic will be given to which person. So this type of presentation is called impromptu presentation or impromptu speaking. Okay, such kind of speaking or presentation generally we see in the TV debate channels. Okay, what happens? Anchor asks some questions to the guest and they answer these questions. Okay, most of the time these questions are not fixed. Okay, and the questions come in the mind of the anchor suddenly or at the on the spot, and he asks that questions to the guest, and the guest was supposed to give the answer. Okay, the guest doesn't get any time to prepare the answer. Okay, it is a kind of on the spot questioning and answering. Okay, so if a person is asked to present or give a speech on a certain topic for a 5 to 7 minutes without the preparation and the topic was given on the spot, so this kind of presentation or speaking comes under the impromptu kind of speaking or presentation. Okay, so this is not an easy task for most of us. Okay, now suppose you are in a meeting or you are in the classroom and teacher suddenly point out towards a student and ask him to give a speech or give a presentation for 5 to 7 minutes or maybe 10 minutes on a particular topic. Okay, so what happens if a student generally student don't have the sufficient matter or sufficient subject matter on that topic, so they generally get nervous. Okay, nervous, what kind of nervous? Okay, what I will speak, okay, or how I will behave in the classroom. So we can say this is not a easy task, because suddenly you are supposed to speak or give a presentation on a certain topic. Okay, many type of questions comes in the mind of the speaker, like what I will ask, what will be the subject matter. Okay, the topic is means hard, or it is I can easily speak on that. So it is not an easy task, and not at all of us are good orators. Okay, many times it is seen that people they are hesitate in oration. Okay, they एनी टाइम जब भी क्या होता है कि किसी को अगर बोला जाता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई एक स्पीच दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि मैं क्या बोलूंगा। लोग कई बार होता है अच्छे वक्ता नहीं होते, मतलब कि किसी भी एक टॉपिक पर उनको पूरी या तो जानकारी नहीं होती, या फिर जानकारी होते हुए भी क्या होता है कि वो सडनली नर्वस हो जाते हैं। जैसे ही कि आप किसी को सडनली बोल दें कि आप इस टॉपिक पर बोलिए, तो क्या होता है वो नर्वस हो जाएंगे, जिससे कि जो शब्दों का चयन है या फिर क्या बोलना है स्टेज पर जाकर, इससे थोड़ी घबराहट होती है।
So thus we find ourselves the loss of word. Okay, अब क्या है कि नर्वस हो गए हैं, हमें पता नहीं कि कैसे स्टेज को फेस करना है, कैसे ऑडियंस को फेस करना है। तो एक टाइप का डर जो है हमारे मन में बैठ जाता है, और उससे क्या होता है, कई बार हमें पता होता है कि हमारा टॉपिक के ऊपर हमारा कमांड होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट स्टेज फेयर, बिकॉज ऑफ दैट ऑडियंस फेयर, जो वर्ड होते हैं वो नहीं निकलते हैं। सो अब क्या है कि कुछ अगर इस कंडीशन में कोई एक पर्सन आ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग के लिए या इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन के लिए अगर उसको बोल दिया जाता है। तो कुछ एक सर्टेन टिप्स हैं जिनको कि अप्लाई करके जो है जो ये सिचुएशन है इससे ओवरकम किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज गो स्लोली। ओके, जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है आपको, तो ऐसा नहीं भागा दौड़ी में कि ओके हमें दे दिया गया है, बस मैं जाऊंगा 5 या 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कुछ भी बोल करके आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जो पर्सन है उसको काम रहना चाहिए। ओके, अब क्या है कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे किसी चीज को लेकर के, तो क्या पहले ही आप पहले से नर्वस हैं कि मुझे स्टेज पे जाना पड़ेगा, ऑडियंस को फेस करना पड़ेगा, एक तो ये सारी चीजें आपके नर्वसनेस में है। उसके बाद में अगर आप चीजों को जल्दी जल्दी करेंगे, वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में काम बिगड़ जाते हैं कई बार। तो क्या होता है कि किसी भी इस टाइप की कंडीशन में आने के बाद में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा एक काम मेंटेलिटी के साथ आप जाइए, और जो भी चीजें हैं उसको परफॉर्म करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टेक योर टाइम टू बिगिन। ओके, अब ऐसा नहीं होता है कि आपको सडनली एक टॉपिक दे दिया गया और आपसे जस्ट बोल दिया जाएगा कि आप जाकर के उसको जो है स्पीच दीजिए या फिर प्रेजेंटेशन दीजिए। क्या होगा कि आपके पास कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट होंगे कि उस टॉपिक पर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं उस 2 से 3 मिनट के बीच में। ठीक है, क्या होता है कि उसमें अब क्या होता है कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, तो पहले उस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। ओके, क्या टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास क्या क्या जानकारीज हैं। ठीक है, कई बार होता है कि कुछ जानकारीज होती है तो उनको रफली एक नोट डाउन कर लिया जाता है, बुलेट फॉर्म में लिख दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठ करके लिखने लगे। ठीक है, बुलेट फॉर्म में लिख दीजिए। वो बुलेट फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि इन फ्यूचर जब आप स्टेज पर जाएंगे, और अगर स्पीच के बीच में या प्रेजेंटेशन के बीच में कोई एक टॉपिक है, आप या कोई एक पॉइंट है जिसको भूल गए, या फिर कई बार होता है कि लोग बोलते बोलते सडनली रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे मुझे क्या बोलना है। तो उस कंडीशन में अगर आपने कुछ बुलेट फॉर्म में नोट डाउन किया होगा किसी एक पेपर में, तो आप सिंपली उसको एक बार निकालिए और एक बार कहीं से कोई भी एक पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, पॉइंट देखने से मन में कुछ ना कुछ उस चीज के बारे में आने लगता है, और फिर आप जो आगे की स्पीच है उसको डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है स्टैंड टॉल। कभी भी अगर प्रेजेंटेशन या फिर स्पीच देना है, तो अगर आपके अंदर एंजाइटी है या फिर स्टेज फियर है या फिर ऑडियंस फियर है, तो उसे ऑडियंस को शो नहीं करना है। ओके, हमेशा अपना बिहेवियर ऐसा रखना है, एकदम काम रखना है, और ऐसा दिखाना है कि आपका जो है टॉपिक के ऊपर जो है कमांड है। कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कि देख करके जो पब्लिक है या ऑडियंस है वो समझ जाती है कि सामने जो पर्सन है जिसको स्पीच देनी है या फिर जिसको प्रेजेंटेशन देना है, वो नर्वस है कि नहीं है। ओके, जैसे क्या होता है, हैंड्स लोगों के हाथ जो है कांपने लगते हैं। देन उसके बाद में लोग पॉकेट में हाथ डालने लगते हैं इधर उधर। ओके, तो ये सब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिनको कि हमें पब्लिक को शो नहीं करने देना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है, जॉट डाउन रफ नोट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 2-3 मिनट का टाइम मिलता है, तो उसमें क्या है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर एक कुछ बुलेटिन फॉर्म में लिख लेना चाहिए। क्योंकि आपको पहले टॉपिक दिया जा चुका है, टॉपिक दिया जा चुका है, तो आपके मन में उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीजें आ रही हैं, ओके, जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आप उनको लिख लीजिए। और उसको लिखने से का फायदा क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप स्टेज पर जाएंगे और स्पीच या प्रेजेंटेशन के बीच में अगर कुछ आप भूल जाते हैं, तो आप आसानी से उसको देख करके जो है रिकॉल कर सकते हैं, और
ओके, जिससे कि जो एक जो लॉस होता है कि इसके बाद में मैं क्या बोलूंगा या फिर सडनली लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटी से जो है उसमें बचा जा सकता है। देन पर्सनलाइज योर स्पीच। ओके, जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, अगर उससे रिलेटेड आपके पर्सनल लाइफ में कोई स्टोरी है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको आप उस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए कि हमेशा ऐसे इंसिडेंट्स को ऑडियंस के सामने रखें। इससे क्या होता है कि एक क्रेडिबिलिटी ऑडियंस में आती है कि जो सामने वाला जो स्पीकर है उसके वो जो है कमांड, उसका कमांड है, किस जो टॉपिक दिया गया है उसका उस टॉपिक पे कमांड है। और इस टाइप के कुछ पर्सनल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने से जो स्पीच है या जो प्रेजेंटेशन है वो भी क्या है काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, और जो ऑडियंस होती है उसको काफी इंटरेस्टिंग वे में जो है सुनती है। देन कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। हमेशा प्रेजेंटेशन के टाइम पे या फिर स्पीकिंग के टाइम पे यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टॉपिक है हमें उस टॉपिक पे ही स्पीच देना चाहिए या प्रेजेंटेशन देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देते देते क्या होता है, लोग टॉपिक से भटक जाते हैं, उस टॉपिक का कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं और फिर उस पॉइंट को ही डिस्क्राइब करने लगते हैं, और वो पॉइंट उनको एक दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है कि जो गिवन टॉपिक था उससे टोटली डिफरेंट रहता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा गिवन टॉपिक है या फिर जिस पे भी हम प्रेजेंटेशन या स्पीच दे रहे हैं उस टॉपिक से हटके भटके ना। उससे क्या होता है, ऑडियंस जो है उसमें कई बार होता है कि एक इंटरेस्ट जो होता है टॉपिक को लेकर या फिर स्पीच को लेकर के वो खत्म हो जाता है। तो हमेशा इस बात का के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमेशा जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, व्हाट शुड बी डन इफ वन गेट गोज ब्लैंक। ओके, क्या होता है जैसा कि मैंने बताया कि कई बार इस स्टेज पर बोलते बोलते हम सडनली ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमने जितने हमारे माइंड में पॉइंट्स थे वो सारे हमने बोल दिए, अब उसके आगे क्या, नेक्स्ट क्या। तो ऐसे कंडीशन अगर आती है या फिर आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो कभी भी हमें ऑडियंस को या पब्लिक को ये शो नहीं करना चाहिए कि अब इसके बाद में हम ब्लैंक हैं या फिर हमें इसके बाद में कुछ नहीं आता है। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस शो करते रहना चाहिए। अगर बीच में कोई एक पॉइंट भूल रहे हैं या फिर ऐसा ब्लैंक हो जा रहे हैं कि आगे क्या बोलना है हमें नहीं पता है, तो उस कंडीशन में कुछ एक एक्टिविटीज हैं जिनको कर करके जिनको यूज करके या फिर अप्लाई करके जो स्पीकर है वो थोड़ा जो टाइम है उसको बोरो कर सकता है, और उस टाइम में जो है जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि अगर एक स्पीकर है वो बोलते बोलते आगे के पॉइंट्स उसको समझ में नहीं आ रहे क्या बोलना चाहिए, तो क्या होता है एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए ही कैन डिमांड। ओके, या फिर उसके बाद में वो सिंपली ऑडियंस से ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका आप कैसे जवाब देंगे या ठीक है। तो क्या होता है ग्लास ऑफ वाटर आने में या फिर ऑडियंस से रिस्पॉन्स आने में जो स्पीकर है उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, और वो जो टाइम होता है वो सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें कि वो आगे के जो पॉइंट्स होते हैं उसको क्या बोलना है उनके बारे में वो जो है आराम से सोच सकता है और उसके बारे में प्रिपेयर कर सकता है। सो कंक्लूजन क्या है कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग क्या होती है। इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग होता है जब भी किसी एक पर्सन को बिना किसी प्रिपरेशन के बोलने के लिए दिया जाता है, और जो टॉपिक होता है वो ऑन द स्पॉट दिया जाता है। जो स्पीकर होता है उसको पहले से पता नहीं होता है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में जो है बोलना होगा। टाइम लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, मोस्टली 5 to 7 मिनट्स या फिर मैक्सिमम जो है 10 मिनट्स का दिया जाता है। तो ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग हो गई। देन मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। जब भी आप स्टेज पर जाएं, कंक्लूजन है ये, जब भी आप स्टेज पर जाएं तो उससे पहले आप ये श्योर कर लें कि जो टॉपिक आपको दिया गया है आप उस मतलब कि आपको किस टॉपिक पे स्पीच देनी है या प्रेजेंटेशन देना है वो एकदम अंडरस्टूड हो आपको। देन बी कॉन्फिडेंस ऑलवेज हमें शो करना चाहिए ऑडियंस के सामने, यस यू आर द मास्टर ऑफ द टॉपिक, ओके, एंड you are the one who is in charge and you are going to deliver on that particular topic.
So and keep it short and crisp. Okay, जो भी टॉपिक है प्रेजेंटेशन का या स्पीच का, हमेशा उसको जो है शॉर्ट रखना है, जो भी गिवन टाइम है उसके अंदर में जो है फिनिश करना है, और जो भी टॉपिक दिया गया है उससे जो है हमें भटकना नहीं है. ऑलवेज ट्राई, वी शुड ट्राई टू कीप स्टैंड ऑन दैट टॉपिक. So this was all about today's class. Thank you, class.